Mumbai, you're not looking? No, sir. Reason? It's way too expensive, sir. Hi guys, welcome to Hotel Management NCHM CTJEE podcast video. Today we have Laksh Bhatt from Uttarakhand and he scored 365 rank. All India rank is 365. Marks is 539 marks. Okay. And he seeking admission into the IHM Pusa and the other IHMs. And he joined us for the online batch. He prepared online. So first of all, Laksh, once again, congratulations for the score. Thank you, sir. So, I mean, before we start, want to know about your background, academic background, 10, 12, and how NCHM CTJEE idea came into the picture. Sir, basically, I passed my class 12th in 2022 with the subject commerce. And I wanted to pursue hotel management because, sir, basically the thing is that I always wanted to become an entrepreneur. Basically, क्या हुआ था, when I was in class 12th, my boards were around 2-3 महीने बाद मेरे बोर्ड्स थे. Okay. तो उसके बाद एक आइडिया आया दैट व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. तो करियर ऑप्शंस में था, कॉमर्स किया था तो बीकॉम था, बीए था, देन लॉ वगैरह की चीजें आ जाती हैं. बट आई थॉट दैट इसमें कंपटीशन भी बहुत है और श्योरिटी भी नहीं है कि तुम एक लेवल तक पहुंचोगे. सो दैट टाइम होटल मैनेजमेंट केम इनटू माय माइंड that I can pursue hotel management and later on I can start with my own business. Okay. Yes, sir. So what business you are planning? Basically food chain, hotel, restaurant. Okay, okay. Fine. But before you start any business, I would say experience is important. So first work somewhere, get the experience, Yeah, sure. get the exposure. Mhm. Okay. So how you got to know about Maneuver? From your YouTube channel, Okay, okay, Maneuver Education. Yeah. okay. So what you have search on YouTube कि Maneuver आ गया? I just searched NCHM CTJEE. There I saw your videos which were explaining that what is NCHM CTJEE, eligibility criteria, colleges and all. That's where I got to know that there is Maneuver Education, and then I thought that I should take class from you. Okay. How was your online preparation experience? Sir, it was pretty good. It helped me a lot. Okay. In terms of what exactly and how it helped? Basically, I opted the coaching for mathematics. Okay. The rest part was not that difficult for me, but mathematics was, I didn't opted mathematics in my class 11th. That's why it was a bit difficult for me. So my main reason for joining the online classes was mathematics. So that's it. Okay. So let's talk about section by section. Logic, English, Maths, GK and service sector. ये पांचों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन बहुत टफ था और उसके लिए क्या किया आपने? एग्जाम में एंड प्रिपरेशन में दोनों? जब प्रिपरेशन में मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था मैथमेटिक्स, एज आई सेड अर्लियर. सो उसमें जैसे कि चैप्टर्स थे कुछ, रेस्ट वाज इजी, परसेंटेज रेशियोज, दिस वाज अ इजियर पार्ट. बट डिफिकल्टी किधर आई, वो चैप्टर था एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस. ओके. और जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले की ये तो पहले भी थे बट प्रैक्टिस छूट गई थी, तो इस वजह से उसमें बहुत दिक्कत आती थी. एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल जो कहते हैं ना कि 10 तक की लेवल की मैथ्स आती है, इस बार तो उससे थोड़ा ज्यादा ही था. नॉट दैट इजी, क्लास 10 जितना. तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया. यस सर. बाकी जीके? जीके सर, जीके ना मतलब जीके में श्योरिटी नहीं होती. मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आप अगर पढ़ के जाओगे तो उसमें ऐसा होता है कि अगर बहुत डिफिकल्ट आया तो यू आर नॉट द ओनली वन जिसके लिए वो डिफिकल्ट होगा. वो सबके लिए ही डिफिकल्ट होता है. बट मैन्यूअर के साथ जीके के लिए तो स्पेशली मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई थी.
ओके। स्पेशली दैट आजाद सर की जो वो वीडियोस होती थी हर मंथ के एंड में आती थी, जो मतलब हर वीक के करंट अफेयर्स सिर्फ हाँ। 30 होते थे, और उससे मतलब तुम्हारा मेंटल लेवल एक यूपीएससी एस्पिरेंट जितना हो जाएगा कि वो कितना होता है कि अवार्ड्स जो भी होते हैं हाँ सब हाँ। कुछ पता चलता था उसमें सर, ओके। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल सब कुछ। बाकी इंग्लिश? इंग्लिश तो सर प्रैक्टिस मांगती है, ओके। दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो उसमें प्रैक्टिस की थी। हम्म। इंग्लिश में ही मैं सबसे गलत करके आया हूँ, मैं 14 क्वेश्चन गलत करके आया हूँ इंग्लिश में, इस वजह से मेरा स्कोर इतना गया है। ओके ओके। इंग्लिश के पार्ट से मैं थोड़ा पीछे रह गया। आइडली इंग्लिश में मेन प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे मेन तो वोकैबलरी। इस बार मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे वो वोकैब बेस्ड थे, इतने भी हम्म। डिफिकल्ट नहीं थे, बट थोड़े से तो थे, मतलब मुझे लगे, बाकी मैं औरों का नहीं कह सकता, मुझे थोड़े बहुत लगे। प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई जो कि लगता है कि ये सारी मिस्टेक्स मैंने की जो दूसरे लोगों को नहीं करनी चाहिए? ऐसे मैं बताऊंगा तो सर लिस्ट भर जाएगी। अच्छा, तो दो चार। प्रिपरेशन के टाइम, हाँ, प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने क्या क्या किया था, मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था। मैंने इससे पहले भी एनसीएचएमसीटी जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया था 12th के बाद ऐसे ही मजे में। 13 जून को शायद से एग्जाम खत्म हुए थे बोर्ड के, और 18 को मैं पेपर देने बैठ गया था। पेपर का लेवल देखा, बहुत इजी था, मेरे 489 मार्क्स आए थे और ऑल इंडिया रैंक 1347 आई थी बिना पढ़े कुछ भी। हम्म। तो पेपर वहां से मेरे दिमाग में आने लग गया कि पेपर बहुत इजी होने वाला है, पूछा तो यूं मिल जाएगा, मतलब यही दिमाग में आता था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पूरे साल ऐसा नहीं है पढ़ाई छोड़ी, बट उतने लेवल की पढ़ाई नहीं करी पूरे साल भर, हम्म। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता गया, मतलब जैसे कि स्टैट्स कर ली, हिस्ट्री कर ली, वो बहुत कम स्कोरिंग था, मैं वो करता गया। ओके। मैंने जो मेन प्रिपरेशन शुरू करी वो लास्ट के, जो अच्छी वाली कहते हैं जिसको, वो लास्ट का 1 महीना था, 20-25 डेज में भी। तो उसमें ही मेरा इतना आ रखा है, बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वो तो मैं लेता था, मैथ्स वगैरह प्रिपेयर हो ही जाती थी। बट ऐसा होता था कि हर हर हफ्ते या फिर हर महीने एक सर्टेन मॉक्स का एक टारगेट होता था, मतलब बच्चों का, कि इतने मॉक्स तो करने ही करना है। मैंने वो नहीं किए थे, अच्छा। मैंने मॉक करना चालू करा लास्ट के 1 महीने में। ओके। तो उधर अगर मैं पहले मॉक करता सॉल्व, तो शायद कुछ और मेरे दिमाग में आता, क्योंकि मॉक का जो लेवल, मैन्यूअर के स्पेशली जो मॉक होते हैं, उसका लेवल होता है, मतलब 1 स्टेप तो नहीं बोलूंगा, 3-4 स्टेप्स हायर होता है। तो थ्री मेरा फोर से। मैन्यूअर के 350-360 ऐसे ही स्कोर आया था आज तक। अच्छा। और जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उसमें मेरे 700-750 भी आए थे एक बार अच्छा। मार्क्स, प्रीवियस ईयर वाले पेपर में। तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर होके गया था। हाँ, मैथमेटिक्स में तो देखो, इट्स लाइक आपके वाले जो मॉक होते हैं, अगर मैं वो करके गया होता, मतलब करे थे बेसिकली, हेल्प भी मिली वहां पे, बट प्रीवियस ईयर के मॉक्स के बेसिस पे अगर मैं ये वाला पेपर करके जाता, कि मैंने पिछले साल के मॉक्स तो कर रखे हैं एंड इस साल भी वैसी क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार मेरे मैथ्स में बहुत गंदे मार्क्स आ जाने थे, ओके। बिकॉज दिस टाइम मैथ वाज क्वाइट डिफिकल्ट। अच्छा। सो तो सिंस मॉक का लेवल अच्छा था तो टफ लेवल के लिए हमने प्रिपेयर किया, एग्जाम में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वी कैन मैनेज, अगर इजी आया तो अपन अच्छा बहुत ही आराम से, करेंगे। मैथमेटिक्स में तो आई कैन से। दैट इज व्हाट वी डू। मतलब आपका मेन्यूअर का मॉक 1 से 2 स्टेप हम टफ ही बनाते हैं, एग्जैक्ट तो सेम नहीं होगा, बिकॉज क्या होगा कि अगर पेपर टफ आ गया तो वहां पे हम फिर मैनेज कर लेंगे, बट अगर टफ आ गया और हमने इजी लेवल प्रिपेयर किया तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। सो कितने मॉक लिखे थे आपने? ध्यान नहीं है सर, 5-6 तो लिखे ही था। हाईएस्ट स्कोर मॉक में 350 एज यू मेंशन। हम्म। मॉक लिख करने के बाद और एक्चुअल जब एनसीएचएम का एग्जाम लिखे तो क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंसेस, क्या समझ में आया? जीके का सेक्शन जो मैंने बताया कि अनसर्टेन रहता है हर बार, तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। हम्म। और बाकी रीजनिंग में भी आपका वाला मॉक थोड़ा टफ था। हम्म। और बाकी इंग्लिश आता है, इंग्लिश में मॉक थोड़ा मतलब अनसर्टेन सा लगा मुझे, जैसे इस बार क्या हुआ था उस, हाँ, आपके वाले मॉक में क्या था कि मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन एक ही मतलब टाइप के हो जाते थे, या तो वोकैब बेस्ड ही होते थे या फिर उस टाइप के, तो इसलिए हाँ, अगर तुम बहुत सारे मॉक कर रहे हो तब तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा, बट एक मॉक करेक्टली उस टाइप का नहीं था, जैसे कि होता है कि सारे क्वेश्चन बैलेंस्ड, हम्म। कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, सब कुछ मिला के, वो मुझे लगा था थोड़ा।
फ्लेवर ऑफ द मॉक, मल्टीपल मॉक लिखने का बेनिफिट ये है, और मल्टीपल मॉक लिखने में ये होता है कि फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हर चीजें एक मॉक में, दैट्स व्हाई वी डोंट कवर, ताकि आपको वो मॉक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आपको एक्चुअल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट वाज योर 2 to 3 लर्निंग फ्रॉम द मॉक? लर्निंग वाज लाइक अपर लेवल क्वेश्चंस ओके। जो भी होते थे मैथमेटिक्स के, तो मैं बोलूंगा ही, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत ही उसमें होती थी, हम्म। मैथ्स में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आता था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। अच्छा। उसमें टाइम मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस। ये पूछ मैक्स टू मैक्स ये पूछ लेते थे कि या तो अपस्ट्रीम की वो बताओ स्पीड, या डाउनस्ट्रीम की बताओ। और प्रीवियस ईयर में भी आज तक वही आया हुआ था। और आपके वाले जो क्वेश्चन थे उसमें स्पीड ऑफ बोट पूछते थे, स्पीड ऑफ रिवर, या फिर बोट इन स्टिल वाटर, ये पूछते थे। तो मैं वो करके गया और इस बार पेपर में वही आ गया। सेम टू सेम। मैं करके नहीं जाता, वो जेन्युइनली बता रहा हूँ सर। मैं अगर आप मॉक्स वगैरह में नहीं होते वो क्वेश्चन, मैं नहीं करके जाता, बट मैं करके गया। वहां पे हेल्प भी मिली मेरे को। ओके, गुड गुड। हम्म। सो ओवरऑल प्रिपरेशन में ऐसा लगा या डीमोटिवेशन आ रहा है, अभी छोड़ देना चाहिए, नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ आया था? बहुत आया था सर। मतलब मैं तो सर पकड़ के रोने भी लग गया था एक बार कि अब तो इतना टाइम बचा है, 1 महीना रह गया, अब कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ। 1 साल मैंने क्या कर दिया पूरा, ऐसा भी लगा था। बट फिर करना तो था ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैं लेके चलता नहीं था। प्लान बी मेरे को यही करना था, हम्म। तो मैंने किया फिर। ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट, जितने लोग 2024 25 26 में टारगेट कर रहे हैं? सर मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई रखो, सिलेबस पूरा रखो। 1 महीने पहले सिलेबस पूरा कर लो। स्टार्ट तो क्योंकि इनफैक्ट जल्दी, पढ़ाई तो इनफैक्ट स्टार्ट थोड़ी जल्दी कर लेनी चाहिए। सर, और मतलब क्या हुआ था जिस दिन एग्जाम था मेरा, तो हाँ हाँ आपने ना वो निकाले हुए थे अपने, क्या कहते हैं उसको, 2000 जीके के क्वेश्चन, थ्री हाँ हाँ थाउजेंड हाँ। स्टैट्स के जो वो थे। तो मैंने ना उसको, मतलब लास्ट टाइम पे ही प्रिपेयर करते हैं उसको, तो क्योंकि एक बार बस देख के करते हैं। तो मैंने ना उसको निकाला, प्रिंट करवाया, और फिर मेरे पे टाइम बहुत कम रह गया था। मतलब 2 दिन रह गए थे उसमें। मेरे को 2000 जीके के करने थे, और मतलब 1500 के आसपास ऐसी कुछ स्टैट के करने थे। हम्म। तो मैंने ना वो पढ़ा पढ़ा पढ़ा, तो मेरा ना पूरा हो नहीं पाया वो। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो गया कि अगर इसमें से क्वेश्चन आ गए, क्योंकि हाई चांसेस रहते हैं क्वेश्चन रिपीट होने के भी। करेक्ट। तो मेरे को ना बहुत प्रेशर हो गया था एंड एंड में, जो लास्ट का पेपर के एक दिन पहले की डेट थे 13 में। उस दिन मेरे से हमेशा हर किसी ने बोला था पढ़ाई मत करना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। आपने भी बोला था अपनी वीडियो पे, एक दिन पहले बूस्ट होके जाना, प्रॉपर स्लीप लेना। मैंने सब वैसे ही किया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जीके का सेक्शन है, मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन चली हुई तो क्या होता है। बट मैं पढ़ के गया था। तो उस दिन क्या हुआ था, मेरे को नींद नहीं आई थी सर, बिल्कुल भी। सर दिमाग में इतनी बातें घूम रही थी, 100 चीजें, मेरे को नींद नहीं आई। थोड़ा पेपर इस वजह से भी खराब गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था उसमें, पेपर में, व्हाट्स द रीजनल लैंग्वेज ऑफ बिहार। मैं उसका आंसर बिहारी करके आ गया था। ऐसा था मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस जगह पे। ओह। सो तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या था मॉक के अंदर, या एक्चुअल एग्जाम में मतलब क्या ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट था? मतलब पहले कौन सा सेक्शन अटेंड किया, उसके बाद कौन सा सेक्शन था? मैंने सबसे लास्ट में तो इंग्लिश छोड़ दिया था। सेकंड ओके। लास्ट में मेरा मैथमेटिक्स था। हम्म। उससे पहले था, हाँ, सबसे पहले मैंने वो किया था, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन, क्योंकि जी के। आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ो। हम्म। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, सारे के सारे सही ही जाएंगे उसमें। तो हम्म थोड़ा हम्म कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उसमें। थर्ड सेक्शन पे रीजनिंग, क्योंकि मेरी रीजनिंग अच्छी थी। थर्ड पे रीजनिंग, फोर्थ पे मैथमेटिक्स करी, और फिफ्थ पे मैंने इंग्लिश करी। ये एक ये मिस्टेक्स था है, मेरा। आइडियली आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू डू द इंग्लिश सेक्शन इन द लास्ट, बिकॉज इंग्लिश में रीड करके अंडरस्टैंड करना होता है, देन यू हैव टू मार्क द आंसर। अगर आप लास्ट में करोगे तो टाइम प्रेशर की वजह से हाई चांस है गलत करने के। तो वो हम्म एक आई जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश का सेक्शन कभी भी लास्ट में मत अटेंड करो। हाँ, बट अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है नहीं है मेरे लिए कन्वीनियंट जा रहा है, देन ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। अदरवाइज नॉट एडवाइजेबल। एनीथिंग एल्स मेरा लव? हो गया था, मैथ्स हो गया था मेरा टाइम से, इसलिए मैंने वो करा था। हाँ, वो आपके लिए वर्क किया तो दैट वाई यू हैव केप्ट इन द लास्ट, दैट इज फाइन। सो सब कुछ हम्म कुछ लोगों के लिए सूट करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता है। हम्म। एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स। So that's all, guys, in this podcast. So the learning from this podcast: start your early preparation, write the mock test, do the analysis of the mock,
and do the mistakes and improve your mistakes. Okay, and start your GK preparation little early because syllabus is very vast. मैथ्स में अगर आपका वीक है तो मैथ्स में पेन घसो इतना हो सकता है, प्रैक्टिस करो. इंग्लिश में वोकैब, ग्रामर, आरसी पे काम करो. ठीक है, जितना जल्दी थोड़ा सा पढ़ाई चालू करोगे, आइडली 1 ईयर, आइड सजेस्ट 1 ईयर या तो फिर 6 महीना कम से कम तो चाहिए. बट लोग 1 ईयर पहले चालू करते हैं बिकॉज 12 का बोर्ड भी होता है, तो दोनों चीज को बैलेंस करना होता है. So as per your convenient, you can start your preparation. But yeah, mock test definitely लिखो before you go for the actual exam because mock test will show you the actual face, actual picture where you stand. Okay. So that's all in this podcast. Laksh, once again, congratulations for your score and all the very best for your career. Thank you. Thank you so much, sir. Bye bye. Yeah, take care.